Very good morning to all of you, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll continue our chapter number 3, Ranga's marriage, from your book Snapshot. And this is your second video of this chapter. So let's read that what happens up next in the chapter or in the story. But before than that, I would like to tell you about the previous things, or in the previous paragraphs, the narrator, he's trying to explain about his village specialties, about mango of his village and how his village is important and what specialties, and then he move on in the last lines of the chapter, that is here when I'm going to tell you is something that happened 10 years, that how one of the man whose name is like Rama Rao, his name is accountant, that is Ranga's father, how he sent him to some other place for his further studies so that he can learn English language, because nobody is there in their village who speaks that language 10 years ago. So let's read the chapter from here. Nor did we bring English words while talking. Move on to next page, students, that is page number 18. In Kannada, what had happened is disgraceful, believe me. The other day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the women, "How much should I give you?" "4 pies," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. So here in this chapter, he's talking about कि किस तरह उनके विलेज की कंडीशन थी, that previously nobody knows that language English and now people knew that language English, और किस तरह जब रामाराव का जो बेटा है, जो रंगा है, जब वो किस तरह इंग्लिश सीख के आया तो उनके साथ क्या क्या हुआ, और वो ऐसे उसकी विलेज का जबकि मोस्ट प्रोबेबली पीपल उसके विलेज में किस लैंग्वेज में बात करते थे, इन कन्नड़. सो व्हाट हैड हैपेंड इज डिसग्रेसफुल. तो वो कह रहा है जो भी हुआ वो थोड़ा डिसग्रेसफुल था, बिलीव मी. द अदर डे, नेक्स्ट डे क्या हुआ? I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. मैं रामाराव के घर में था जब उनके घर में लकड़ी जलाने के लिए जो फायरवुड का एक जो है, ऐसी लकड़ी जो जलाने की या चूल्हा वूल्हा या कुछ भी जलाने के काम आती है, तो फायरवुड का एक बंडल उन्होंने खरीदा. रामाराव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट. रामाराव का जो बेटा है, दैट इज़ रंगा, वो पैसे देने के लिए बाहर आया. ही आस्क्ड द विमेन. सो जो लेडी वो बंडल लेकर आई थी, वुडन बंडल बंच जो है स्टिक्स का, वो लेकर आई थी. उसने उससे पूछा कि कितना पैसे हुए. हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ. तो विमेन ने कहा 4 पैसे. सो उसने कहा दैट रामाराव के बेटे ने, रंगा ने, that said the boy told her he did not have any change. तो वो अचानक क्या कहता है रंगा कि I don't have that change money, मेरे पास चेंज नहीं है. और चेंज ना होने के कारण अगले दिन सुबह आने के लिए उस लेडी को उसने कहा that you can come to the next morning. And the poor women did not understand the English word change. लेकिन जो डिसग्रेसफुल बात वो ये हुई कि उसने तो ये वर्ड अपना इंग्लिश में यूज़ कर लिया, डिसग्रेसफुल, रंगा ने. बट दैट लेडी हु बिलोंग फ्रॉम दैट विलेज, हु अंडरस्टैंड्स ओनली दैट लैंग्वेज कन्नड़, उसे इंग्लिश में समझ में ही नहीं आया कि चेंज शब्द का मतलब क्या होता है. एंड वेंट मटरिंग अवे टू हर सेल्फ, और वो अपने आप से ही कुछ बुदबुदाती हुई या कहती हुई चली गई. इवन जो नैरेटर हैं, क्योंकि वो भी इंग्लिश में नहीं पढ़े थे, तो ही सेड कि मुझे भी उस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट. और जब बाद में वो रंगा के घर गया तब उसने रंगा को बताया कि इस शब्द का उसको मतलब जो है समझ में आ गया. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. यो
This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come Ranga is here, let's go and have a look. So what happens up here, that रंगा के आने का, तो ये सारे इंसिडेंट्स से नैरेटर ने हमें क्या समझाया है. सो द अबव इंसिडेंट वी हैव ऑलरेडी रेड इन आवर नेक्स्ट प्रीवियस पैराग्राफ. that narrator, he tried to explain everything here, that why इंग्लिश लैंग्वेज या जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको उनके गांव में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है. द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डेकेड अगो. एक डेकेड पहले ये जो लैंग्वेज है ये इनके विलेज में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी. दैट वॉज वाई रंगा होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. दैट इज़ वाई रंगा की होम कमिंग एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था या एक बहुत बड़ी घटना थी लोगों के लिए. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग उसके घर के दरवाज़ों की तरफ जल्दी जल्दी चल कर गए या भागे ताकि वो ये और क्या कहते हुए गए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. देखो अकाउंटेंट का बेटा जो है वो आ गया है. द बॉय हु हैज़ गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर. वो लड़का जो बैंगलोर अपनी स्टडीज़ के लिए गया था वो आ चुका है. सो इस तरह की बातें करते हुए जो लोग हैं वो वहाँ गए. एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. और साथ में क्या बोलते हुए गए लोग कि आओ आओ देखते हैं, वेयर इज रंगा, वो रंगा जो है वो कहाँ है, चलो उसको एक बार देख लेते हैं. या एक बार देखिए वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो कहाँ से आया है, बाहर से आया है. अट्रैक्टेड द क्राउड, योर स्टूडेंट्स, अट्रैक्टेड द क्राउड. I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here. इस भीड़ को देखकर जो नैरेटर है उनने भी लोगों से ये पूछा कि गांव में कोई ऐसा बंदर का खेल दिखाने वाले थोड़ा ना आए हैं जो आप लोग इतनी भीड़ आपने लगा दी है. मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. So here क्या हुआ है, a boy fellow without any brains said loud enough for everyone to hear. एक लड़का जो आप कह सकते हो जिसमें दिमाग की कमी थी या वो अपने सोच समझ कर नहीं बोल रहा था, यू कैन से दैट. तो उसने रंगा नैरेटर को क्या कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें ये इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं कि कौन आया है. एंड अ यंगस्टर इमेच्योर, तो उसने क्या कहा, एक ऐसा यंगस्टर जो इमेच्योर है और बिना किसी तौर तरीके या मैनर्स वाला है. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ पास्ट, आई केप्ट क्वाइट, कि ये सब बातें पहले की थी और उसने उसे कहा तो नैरेटर जो है वो उस वक्त चुप हो गया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा कम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. हैड वी all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, Janevara is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. So what happens here? Seeing so many people there. इतने सारे लोगों को देखकर रंगा जो है वो बाहर आया and उसने क्या कहा कि अगर हम अंदर चले जाते तो जैसा लोग कहते हैं कि वो पूरी जगह ऐसा हो जाती जैसे कि कोई ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, जैसे कैलकटा में कोई एक काली कोठरी या कलकत्ता की कोई एक कोठरी बन गई है. थैंक गॉड इट डिड नॉट. थैंक गॉड ऐसा नहीं
हुआ. Everyone was surprised to see that Ranga was same as he had 6 months ago. अब रंगा कितने मंथ्स के लिए गया था? Only for 6 months. So अब सब ये देख के हैरान थे कि रंगा अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो गया था 6 महीने पहले. एन ओल्ड विमेन जो कि उसके पास में खड़ी थी, उसने अपने हाथ उसकी छाती पर फेरे, रंगा के चेस्ट पर, एंड उसकी आंखों में देखा. सो दैट विमेन, उसने उसकी who was near him ran her hand over his chest and looked into his eyes and said, और उसने क्या कहा women ने, that Janevara is still there. That means जनेऊ एक प्रकार का एक धागा, कुछ कास्ट में पीपल आर वेयरिंग दोज और बॉयज़ आर वेयरिंग दोज दैट जनेऊ. सो वो जनेवरा जो है वो अभी भी रंगा ने पहन रखी है. सो इट इज़ लाइक द सेक्रेड thread worn by Brahmin people. So in Kannada language they called it Janevara. So वो लेडी उसके चेस्ट पे हाथ फेर के बोलती है कि that is still there. That means वो अपनी कास्ट नहीं भूला है. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. और उस लेडी के जाने के बाद रंगा जो है वो हंसने लगा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जैसे ही लोगों ने ये देखा या रियलाइज़ किया कि रंगा बिल्कुल भी नहीं बदला है, सेम जैसा वो पहले दिखता था, उसकी अपीयरेंस अभी भी बिल्कुल वैसी है, सेम ईयर्स, आइज, नोज, हैंड्स, ऑल द थिंग्स. सो सारी भीड़ ऐसे चली गई जैसे एक गुड़ की या एक शुगर, सम लम्प ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में चीनी घुल जाती है, ऐसे. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड. सो नैरेटर कह रहा है कि जब सब चले गए पर फिर भी मैं वहाँ खड़ा रहा और चुपचाप खड़ा रहा. और उसने, नैरेटर जो है उसने रंगा से कहा, हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू. रंगप्पा तुम कैसे हो, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी. और ये तभी हुआ जब रंगा ने उसे पहली बार नोटिस किया. ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग, आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स. रंगा नैरेटर के पास गया और उसने उसे बिल्कुल झुक के ट्रेडिशनल वे में, यू कैन से दैट इन ट्रेडिशनल वे, रंगा did a namaskar to narrator very respectfully and say that he is all right आपके आशीर्वाद से. Next, I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. सो इधर जो है लास्ट लाइन्स में नैरेटर हमारी अटेंशन इधर खींचना चाह रहे हैं दैट कैसा रंगा का कैरेक्टर है. सो रंगा का के कैरेक्टर के बारे में कि वो जानता था कि किसी से बात करने का कब और कैसे उससे बात करना चाहिए, एंड हाउ टू टॉक पीपल इन अ राइट वे, और किससे बात करने से क्या बेनिफिट होने वाला है या किससे बात करना वर्दी है और नॉट वर्दी है. थैंक यू स्टूडेंट्स. We'll continue our next part in our third video.